Good morning to all of you. Today I'm going to start chapter number 7, class 10th English. So, this is the chapter about glimpses of India, and in this chapter, we will learn about three different states. The first one is Goa, and second part of this chapter is about Kurg. Kurg is a place in Karnataka, and the third part of the chapter is about Assam. So, what thing famous of which place and why this state is famous? There are so many things which we will learn. So, today I will complete the first part, A Baker from Goa, and it is very interesting chapter. When you will listen about this chapter, definitely you will try to find out on the internet that is it real or not. So, whenever we talk about India only, and whenever we talk about the states, so definitely many things come in our mind, like the people who live there. For example, if I give you the example of if I talk about Rajasthan, so the dresses of that place, the people wear, the image of these dresses definitely will come in our mind. And if you talk about Northeast, then definitely the people and image and culture we will think about it. And if you talk about Kashmir, if we talk about Kerala, so different kind of things, thoughts come in our mind. So let's start the chapter. A baker from Goa. This is a pen portrait of a traditional Gaon village baker who still has an important place in his society. यानी कि ये जो एक कहानी है, एक लिखी गई है, एक ट्रेडिशनल गांव है जो बेकर वहाँ पर रहते हैं और जो अभी भी एक अपनी एक इम्पोर्टेंस रखते हैं सोसाइटी के अंदर. The author is saying, our elders are often heard reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days. Portuguese and their famous loaves of bread. Those eaters of loaves might have vanished, but the makers are still there. We still have amongst us the mixers, the molders, and those who bake the loaves. Those age-old, time-tested furnaces still exist. The fire in the furnaces has not yet been extinguished. The thud and jingle of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can't still be heard in some places. Can still be heard in some places. Maybe the father is not alive, but the son still carries on the family profession. These bakers are even today known as Pader in Goa. So, हमारे जो एल्डर्स हैं, ये द ऑथर बता रहा है कि हमारे जो एल्डर्स हैं वो बताते हैं कि कुछ चीज़ों के लिए यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा शौकीन थे. जब पोर्टुगीज़ आते थे तो कुछ लोग दे वर वेरी फॉन्ड ऑफ समथिंग टू ईट. उनमें एक फेमस ब्रेड थी यहाँ की, लोव्स ऑफ ब्रेड. और जो लोव्स के खाने वाले जो थे अब तो वो गायब हो गए हैं, लेकिन उनको बनाने वाले अभी भी हैं. और जो वो मिक्सर हैं उसमें क्या क्या मिलाते हैं वो स्टिल हैव, जिसमें वो आटा को मिलाते थे, मिक्स करते थे, फिर उसको फोल्ड करते थे, बनाते थे और बेक करते थे. तो वो सारी चीज़ें हैं टाइम के हिसाब से चेंज हो रही हैं. और वो भट्टियाँ भी हैं जिसमें वो फर्नेस जिसमें वो सेकते थे उसको. फायर फर्नेसेस अभी गायब नहीं हुई हैं पूरी तरीके से, और वो अभी भी लाइफ चल रही है. ट्रेडिशनल बेकर बैम्बू लेकर आता था, जो उसके आने के पता चल जाया करता था उसकी आवाज़ से कि सुबह सुबह वो आ गया है. तो ये अभी भी आवाज़ें मतलब कहीं ना कहीं सुनाई दे जाती हैं कुछ प्लेसेस में गोवा के. तो फादर्स जो है वो अब भले ही उन लोगों के ज़िंदा नहीं है, बट कुछ बेटों ने उनके, कुछ लोगों ने इस प्रोफेशन को कंटिन्यू रखा. और बेकर जो थे वो उनको अब हम कहते हैं पाडर गोवा में.
सो ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, ये ऑथर बता रहा है कि ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा the baker used to be our friend, companion, and guide. He used to come at least twice a day, once when he set out in the morning on his selling round, and then again when he returned after emptying his huge basket. The jingling thud of his bamboo woke us up from sleep, and we ran to meet and greet him. Why was it so? Was it for love of loaf? Not at all. The loaves were brought by some Pescine or Bestine, the maidservant of the house. What we longed for were those bread bangles which were choose carefully. Sometimes it was sweet bread of special make. तो यहाँ पर ऑथर जो है ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जब वो छोटे से थे बचपन में, तो बेकर जो है वो उनके फ्रेंड हो जाया करते थे, बन जाया करते थे, जाहिर सी बात है अपने बच्चों को देख के। तो वो उनके कंपेनियन भी थे, उनके गाइड भी होते थे। और जो बेकर्स थे वो कम से कम 2 बार दिन में आया करते थे। एक बार मॉर्निंग में बेचने के लिए अपनी चीज़ों को, और फिर दोबारा से वो आते थे जब वो बास्केट पूरी खाली हो जाया करती थी, तो फिर वापस वहीं से वो वापस जाया करते थे। और उनकी जो आवाज़ थी, एक तो थर्ड 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 जो उनका बैम्बू होता था उसकी आवाज़ होती थी, तो इतनी तेज़ होती थी कि सोता हुआ आदमी भी, ये लोग सोते रहते थे लेकिन ये उसी को सुन के उठ जाया करते थे और सीधा उनको भागते थे ग्रीट करने के लिए। तो ऐसा क्यों था, जबकि उनको तो ब्रेड नहीं लेनी होती थी? क्या उनको लोफ बहुत पसंद था? नो, ये वैसा नहीं था, बल्कि ये था कि लोफ तो उनके घर में जो उनके पैस्किन और बेस्टाइन होते थे या मेड सर्वेंट होते थे वो ले लिया करते थे। बट ये किस लिए जाते थे कि जो ब्रेड बैंगल्स होती थी विच वर चूज़ केयरफुली समटाइम्स, वो क्या करते थे कि जो उसमें से कटिंग एक तरीके से बच जाया करती थी, जो इन लोगों को वो दे दिया करते थे। स्पेशल ब्रेड जो है वो उसकी बच्चा बनाते थे, उस कटिंग करके बैंगल्स की, ब्रेड बैंगल की, और उससे वो इनको दे दिया करते थे कि स्पेशल बना के, ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, स्वीट बना के। तो बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन with the jhang jhang sound of his specially made bamboo staff. One hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. We kids would be pushed aside with a mild rebuke and the loaves would be delivered to the servant, but we would not give up. We would climb a bench or the parapet and peep into the basket. Somehow, I can still recall the typical fragrance of those loaves for the elders and the bangles for the children. Then we did not even care to brush our teeth or wash our mouths properly. And why should we? We should take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush. And why was it necessary at all? The tiger never brushed his teeth. How he could wash and clean up everything so nicely after all. So, इसमें क्या था, बेकर जो आते थे वो बड़ी आवाज़ के साथ आते थे। जब उनकी एंट्री होती थी तो वो झंग झंग करते हुए आते थे। एक तो उनका बैम्बू जो है वो तेज़ तेज़ ज़मीन पे लगता था जिसको वो मारते हुए आते थे, और दूसरा एक हाथ में उनके बास्केट होती थी, दूसरे में उनके जिसको वो बैंग बैंग करते थे, बैम्बू लकड़ी होती थी जिसको वो ज़मीन पे मारते हुए चलते रहते थे। तो और वो घर की जो लेडीज़ होती थी उनको ग्रीट करते थे गुड मॉर्निंग करके, और अपनी बास्केट वहीं रख लेते थे उस बैम्बू के ऊपर ही जो चलता था, उसी पे वो बास्केट भी रखते थे। बच्चे जो है वो जाते थे वहाँ पर, हालांकि उनको डांट पड़ती थी कि दूर हटो, और बट वो जाते थे। ये हार नहीं मानते थे, मतलब हमेशा रोज़ भागते हुए जाते थे। उनको डांट पड़ती थी कि मेड अपने आप ले लेगी, तुम क्यों भागते हुए जा रहे हो। तो ये हमेशा बेंच पे चढ़ते थे और बास्केट को झांकते थे हमेशा उस पे से चढ़ के कि आखिर इसकी बास्केट में है क्या। तो कुछ तो इसको अभी भी याद आ रहा है ऑथर को कि जो फ्रेगरेंस होती थी वो बड़ी अच्छी होती थी, और जो बच्चों के लिए वो अलग से वो बैंगल्स लेकर आया करते थे, जो कटिंग निकल जाया करती थी उसमें छोटे छोटे ब्रेड उनके लिए लाते थे। और
उस वक्त इनको इतनी ज़्यादा लगन थी कि ये सीधा उठ के भाग लेते थे, ना ये मुँह धोते थे ना ब्रश करते थे, इनको चिंता नहीं होती थी। तो ये ऐसा क्यों करने थे कि अब इनको उठ के जो है वो नीम की डाली या उसके पत्ते तोड़ने पड़ेंगे और फिर जो है वो टूथब्रश करना पड़ेगा उससे। और इनको ये भी लगता था कि उतना ज़रूरी भी नहीं है। एक कहावत होती है कि भाई टाइगर कौन, शेर कभी दांत नहीं मांजते, या शेर को के मुंह किसने धोए हैं, ये कहावतें आप लोगों ने सुनी होंगी। तो यहाँ पर इनको वो अपने आप को ये कह के तसल्ली दे लेते थे, और उनको लगता था कि अभी गरम गरम चाय तो पियेंगे तो उससे हमारा अपने आप ही टीथ वगैरह सब क्लीन हो जाएंगे। Marriage gifts are meaningless without the sweetbread known as bowl, just as a party of a feast loses its charm without bread. Not enough can be said to show how important a baker can be for our village. The lady of the house must prepare sandwiches on the occasion of her daughter's engagement. Cakes and linhas are must for Christmas as well as other festivals. Thus, the presence of baker's furnace in the village is absolutely essential. तो मैरिज और गिफ्ट में मतलब जब तक आपने ब्रेड नहीं दिया तो वो उसको कोई मीनिंग नहीं है। कुछ भी दो, लेकिन वो नहीं दिया तो समझ लीजिए कुछ नहीं दिया। वो कहीं भी खिलाया, अगर खाना भी या चाह रहा है या पार्टी चल रही है तो ब्रेड ही जो है वो उसका चार्म होता था सबसे ज़्यादा। और इतना भी कहना बहुत नहीं है, बल्कि ये था कि इम्पॉर्टेंट जो थे वो बेकर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते थे पूरे विलेज के लिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि भाई बेकर कौन आएगा, उस बेकर को करते हैं। तो लेडी जो होती थी वो हाउस की वो सैंडविचेस वगैरह बनाती थी डॉटर्स की इंगेजमेंट पे सब कुछ, लेकिन केक वगैरह यहीं से आते थे, क्रिसमस पे भी बनते थे, फेस्टिवल्स पे। तो प्रेजेंस ऑफ बेकर्स जो था विलेज इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल, मतलब उसमें उनकी भट्टियाँ और फर्नेस ज़रूर होती थी हर गाँव में, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। The bakers or bread seller of those days had a peculiar dress known as कबाई। वो एक ख़ास तरह के ड्रेस पहनते थे जिसको हम कबाई कहते हैं। It was a single piece long frock reaching down to knee. In our childhood, we know bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants. Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comments that he is dressed like a pader. तो अभी भी उनकी ड्रेस ऐसी होती थी कि एक लॉन्ग ड्रेस वो पहनते थे, पूरा एक सिंगल पीस होता था फ्रॉक टाइप का, वो पूरा घुटनों से नीचे पहुंचा रहता था। और बचपन में जो है ये देखते थे कि बेकर जो है वो शर्ट और ट्राउज़र भी पहनते थे, बट उसकी जो लेंथ होती थी वो कम होती थी फुल लेंथ से, और बट हाफ पैंट से ज़्यादा होती थी, शॉर्ट से, फुल पैंट से कम होती थी। तो आज भी अगर कोई वैसी ड्रेस पहनता है तो उसको ये लोग कहते हैं कि अच्छा ये तो पाडेर वाले कपड़े हैं। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ. Monthly accounts used to be recorded on some wall in pencil. Baking was indeed a profitable profession in the old days. The baker and his family never starved. His family and his servants always looked happy and prosperous. Their plump physique was an open testimony to this. Even today, any person with a jackfruit-like physical appearance is easily compared to a baker. तो बेकर जो थे वो यूजुअली एक मतलब अपना बिल जो है वो मंथली सप्लाई तो रोज़ कर दिया करते थे, घर पर डिलीवर कर दिया करते थे, एंड दे कलेक्ट द मनी एट द एंड ऑफ द मंथ। तो महीने के आखिर में वो इकट्ठा करते थे और मंथली अकाउंट होता था। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग कि वेयर दे मेंटेन द अकाउंट, वो घर की ही सामने दीवार पे लिख जाया करते थे पेंसिल से रोज़ाना कि आज हमने यहाँ पर दिया, यहाँ पर दिया। और वो एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था पुराने वक्त में, उस वक्त उनको बहुत फ़ायदा होता था। पूरी फैमिली जो है वो कभी भूखी नहीं मरती थी उनकी, इसी सिर्फ एक ही काम से उसकी फैमिली, उसके सर्वेंट्स सब खुश रहते थे। और उनकी जो फिज़िक थी बड़े लंबे चौड़े हुआ करते थे, वो इसी बात की निशानी था कि ये लोग बहुत खुश रहते हैं। और फिज़िकल अपीयरेंस जो है उनकी तकड़ी होती थी तो लोग पहचान जाते कहते थे कि ये तो एक बेकर लग रहा है। So I hope you have understood. In the next video I will continue the second part, that is Kurg. Thank you.